Welcome to Decaf Psychologist, where we brew fresh insights on mental health minus the caffeine jitters. Hi everyone, thank you for joining on this YouTube premiere. Receives certain questions revolving around the love theme. Let's get down to the questions right away. क्योंकि मैं वैसे भी फिर derail हो जाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी. But don't worry, right now I have my notes with me so I don't lose track of thoughts and I don't talk about topics in too much detail. And also my team is gonna edit it and make it faster for you guys. Speaking fast just doesn't come too naturally to me. I take my time to speak things and think about things because that's what seems like a good thing to do. Why the rush? But let's get to the question one. Or question one का basic theme था कि is it love or obsession? So जिन्होंने हमें ये question send किया है, that person is sort of like not sure if they're feeling obsessed about a certain individual or are they really in love. So I'm going to read the question. You are also going to see the question on the screen. Yeah, actually I'm not going to read the question. आप लोग screen पे देख सकते होंगे question over here or over here, I don't know. So the question, क्योंकि थीम जो है आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या वो पूछ रहे हैं कि क्या ये ऑब्सेशन है जो मैं फील लेट मी सी कि ये हर वक्त ये सोचता हूँ कि वो अभी क्या कर रही होगी. या सो दिस इज़ लाइकली अ बॉय, तो ये वो obsessed फील कर रहे हैं अबाउट दैट गर्ल और ही is trying to understand if it's really love. So the difference between love and obsession, it's really important to understand because right now these days our youth, especially हमारे जो youth और young adults वाला segment है, even अगर हम late adulthood में भी चले जाएं, marriage और उसके बाद वाला time period भी हम discuss करें, तो people don't have an idea of what it is to be really in love or actually the definition of a committed relationship, जिसको हम true love कहते हैं, सच्चा प्यार जो है वो क्या है. So whatever you are feeling, firstly it is not to invalidate your emotions. ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी को भी feel हो सकता है, but the good thing is कि you have realized कि you need to understand about your feelings toward that girl or you want to make sense of it, and this is the first step because you are trying to think about it कि आप ये क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. And I am hoping कि अगर आपको लगे कि ये एक certain जो है वो direction में जा रहा है, obsession की direction में, तो you would likely take educated steps to try to make things better for yourself and for the other person as well. So obsession होती है कि जब आपका तमाम तरह जो आपकी सोचें हैं, ख़याल, वो इर्द गिर्द एक human being के घूम रही है. Like that person becomes the center of your life. That person becomes the nucleus. आप अपना जो है, आप हर चीज़ जो है is about that one individual. So आप obsessed हो जाते हैं. You are stalking that person on social media. You are looking at the updates of that person. You are looking at what they're saying, where they're going. You're trying to stay in touch. So that is when it becomes obsession, when you are always trying to stay included in that person's life, or you're always trying to, be in touch with her, or just आप उसका ही ख्यालों में रहना चाहें और वो आपके ही ख्यालों में रहे, तो ये बिल्कुल एक obsession वाला dynamic बन जाएगा because your life is basically about that person now. और दूसरी तरफ जो हम मिस्टिकल जो एक बड़ा ही जिस प्यार की तलब हम सबको रहती है, जिसके हम सब वो क्या कहना चाहिए, वी आर सर्चिंग फॉर दैट लव, जो एक मिस्टिकल ट्रू लव है, वो क्या है, वो अगर हम साइकोलॉजिकली और न्यूरोलॉजिकली समझना चाहें तो दैट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट दैन व्हाट लव इज़ पोर्ट्रेड ऑन मीडिया दीज डेज, मूवीज दीज डेज, क्या फॉर द पास्ट फ्यू डेकेड्स जिस तरह से लव को पोर्ट्रे किया जा रहा है, इट्स रियली डिफरेंट. द रोमांटिक लव, द ट्रू लव, अगर हम उसको साइकोलॉजिकली न्यूरोलॉजिकली अंडरस्टैंड करें तो द ट्रू लव, इफ़ आई say it in a precise way. So true love is about growth. It is about trust. It is about mutual respect. It is about talking things through without एक दूसरे को ईंटें मारना शुरू कर देना. So it is about patience and tolerance, about the difference of opinion. ठहराव होता है true love में. और ऐसा नहीं मैं कह रही कि शुरू से ही ठहराव होगा. I am a very firm believer कि a dearth of arguments or clashes in a couple does not define marital satisfaction or क्या कहना चाहिए longevity. rather कि आप उन conflicts को कैसे overcome करते हैं, कितना जो है वो buffer और resilience और rebound ability है relationship में, that defines the longevity of the relationship, and that is the accountability goes for both the partners. तो इस case में आप देखें कि अगर आप बहुत ज़्यादा उस
सर्टेन लेडी के ही ख्यालों में गुम रहते हैं, तो दैट इज़ मोस्ट लाइकली गोइंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ऑब्सेशन। क्योंकि ट्रू लव जो है वो स्पेस भी देता है। ट्रू लव में दोनों ही इंडिविजुअल्स किसी को स्नब नहीं करते और एक दूसरे को केज भी नहीं करते। ट्रू लव लेट्स ईच अदर ग्रो एज वेल, और सपोर्ट होती है, रिस्पेक्ट होती है, और ग्रोथ जो है उसमें एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। और ऐसा नहीं होता है कि आप अपने ट्रू लव में होते हुए अपने गोल्स, अपनी लाइफ को बिल्कुल भूल जाते हैं। सो अगर ऐसा हो रहा है कि यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट हर ऑल द टाइम कि वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, और क्यों बात कर रही है, और ये सब आप हर वक्त सोचते रहते हैं, तो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट समथिंग टू टेक फॉर ग्रांटेड, और ये ऑब्सेशन की डायरेक्शन में जा रहा है। सर्टन लेवल ऑफ पजेसिवनेस अपने रोमांटिक पार्टनर के लिए हो सकती है, लेकिन अगेन चीज़ें लिमिट में होंगी तो वो नॉर्मेटिव रहेंगी। जब लिमिट से ज़्यादा होंगी या कम होंगी तो वो जो है पैथोलॉजी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। फिर एक काफ़ी मशहूर साइकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर गॉटमैन जो है, उसके मुताबिक जो है ट्रू लव जो है इज़ अबाउट बिल्डिंग अ लव मैप टुगेदर ना। दो लोग आपस मिल के जो है साथ एक लव मैप बनाते हैं। और कैसे बनता है जी ये लव मैप? ये लव मैप होता है एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक्स और इनसिक्योरिटीज़ और ड्रीम्स, इनकी अवेयरनेस से बनता है, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और ओवर टाइम इमोशनल ग्रोथ से बनता है। अगेन मैं कह रही हूँ कि ये इमोशनल ग्रोथ, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, ये सारा कुछ स्टेबिलिटी फ़ौरन से नहीं आ जाता। ये कोई क्विक फिक्स जो है पैनाडोल नहीं है कि आप लेंगे और सर दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए ओवर टाइम जो है वो एफ़र्ट करनी पड़ती है। तो ट्रू लव जो है वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि ट्रू लव जो है वो कमिटमेंट और वर्क रिक्वायर करता है। जैसे जिम जाने से जो है वो आपको दोबारा एक एक्टिव फिजियोलॉजी मिलती है, बैठे बैठे ही नहीं मिल जाती, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ट्रू लव का भी यही सीन है। और उसके अराउंड जो भी चीज़ें घूम रही हैं वो या तो इन्फैचुएशन में आ जाएगा, ऑब्सेशन में आ जाएगा, या फिर मेरे हिसाब से आजकल का जो पाकिस्तानी लव पचीनो बना हुआ है वो आ जाता है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा जो यंग जनरेशन है वो एक लव रैट रेस में है। वैसे तो अनफॉर्चुनेटली एज ए सोसाइटी हम सारे ही किसी ना किसी रैट रेस में हैं। इवन मैं खुद भी कहूँ तो आई एम डेफिनेटली स्टक इन सम टाइप ऑफ रैट रेस। एकेडमिक साइड पे आप देख लें या करियर साइड पे, वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू, इट्स अ रेस, और इसी रेस में लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो हम ये सोचते नहीं हैं, वी डोंट पॉज टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट कि एक्चुअली वाई वी आर हेयर। और अगेन जब हम ये वाली सारी बातें करते हैं ना मीठी मीठी, कि हम सोचते नहीं हैं और हम रैट रेस में हैं, तो मैं कहती हूँ कि वी आर ब्लेस्ड कि हम इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये हम क्यों नहीं सोचते, और ये क्यों नहीं सोचते, हम क्यों इन रेसेस में फंसे हुए हैं, दौड़ में। ज़रा तहम्मुल से करें। कुछ लोगों के पास ये लग्जरी नहीं होती कि वो तहम्मुल से ज़िंदगी को ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि जब हम, अगर आप लोग साइकोलॉजी से थोड़ा बहुत अवेयर हों तो एक साइकोलॉजिस्ट है अब्राहम मैस्लो था, तो उसने एक हायरार्की ऑफ नीड्स का पिरामिड बनाया। उसमें सबसे बेसिक नीड्स जो हैं आपकी, वो सिक्योरिटी और सर्वाइवल नीड्स हैं, फूड, ये सब है। तो ये सब जब तक जो बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर से जो रिलेटेड है, सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो फिर बाकी ऊपर की जो रियलाइजेशंस हैं जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाती हैं कि वाई वी आर हेयर इन दिस वर्ल्ड, और फिर रिलेशनशिप, सक्सेस वगैरह, ये सारी चीज़ें ऊपर की नीड्स में आती हैं, तो वो इंसान उसके बारे में नहीं सोच सकता। तो अनफॉर्चुनेटली आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो पिरामिड के उस कहीं लेवल पे फंस गई है जो कि रिलेशनशिप डायनामिक्स को एड्रेस कर रहा है, और जो आजकल के रिलेशनशिप्स हैं उनमें लव को एक करेंसी के तौर पे यूज़ किया जाता है। और ये काफ़ी अरसे से हो रहा है कि जैसे ख़ास तौर पे जो लड़के हैं उनमें पीयर ग्रुप्स में ये बहुत होता है, भाई तुम्हारे पास कितनी बंदियाँ हैं। सो बंदियाँ आर लाइक करेंसी फॉर बॉयज़ टू गेन सोशल स्टेटस इन देयर पीयर ग्रुप्स, और फिर जिसके पास नहीं होंगी वो तो फिर किसी खाते में ही नहीं है। इसी तरह लड़कियों का भी एक सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ सोशल प्रेशर रहता है कि भाई तुम लव अफेयर में हो या नहीं हो, या क्यों हो, और इट क्रिएट्स अ वेरी टॉक्सिक डायनामिक फॉर बोथ द बॉय एंड द गर्ल। और हमारा जो यूथ है इसमें बहुत सफ़र भी करता है, बहुत तरह से बर्बाद हो जाते हैं बच्चे, और फिर बहुत सारी स्टीरियोटाइप्स हैं जिनकी वजह से बच्चे जो हैं, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो इस तरह की बातों को एक तो छुपाते हैं, और फिर जहाँ से गाइडेंस लेने जाते हैं उधर से उन्हें गाइडेंस के बजाय दे आर नॉट
प्रॉपर चैनल्स, देयर आर नो प्रॉपर चैनल्स जहाँ से वो इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकें, अपनी बातें शेयर कर सकें। इट्स नॉट अप्रिशिएटेड, इट्स लुक्ड स्क्वेयरली अपॉन, वेरी नेगेटिवली अपॉन, जिसकी वजह से बच्चे बात ही नहीं करते। और इसकी ज़िम्मेदारी पेरेंट्स पे भी बहुत आती है, हमारी सोसाइटी पे आती है, टीचर्स पे आती है। हम क्यों उनको इतना जो है वो स्टीरियोटिपिकल वेज़ में देखते हैं कि बच्चे हमारे हमसे प्रॉपरली अपनी ये वाली सारी नीड्स पे बात करने से फिर झिझकते हैं। सो मेरे हिसाब से इन टॉपिक्स पे, इस तरह के टॉपिक, सिर्फ इस टॉपिक पे नहीं कि लव और रिलेशनशिप पे, पेरेंट्स और फैमिलीज़ में भी एक कंफर्ट जोन में रहते हुए बात होनी चाहिए। क्योंकि जिस एज ग्रुप में जिस हार्मोनल मेकअप के साथ एक टीनेजर बैठा होता है, एक यंग एडल्ट बैठा होता है, आप 40-50 साल में वो हार्मोन लेवल्स आपके स्टेबलाइज हो चुके होते हैं, बल्कि डीस्टेबलाइज हो रहे होते हैं। तो आपके दिमाग में जो न्यूरोकेमिस्ट्री है वो डिफरेंट है, वो एक ठहराव में है। आप वो ठहराव उस सर्टेन इंडिविजुअल को जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो बहरहाल, कमिंग बैक, कि अगर आपको अपने गोल्स और इंटरेस्ट जो हैं वो आप निगलेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी निगलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं हर वक्त कि वो भाई क्या कर रही है, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रही, वो किससे बात कर रही है, वो कहाँ जा रही है, वो क्यों जा रही है, वो क्या पहन रही है और वो क्या खा रही है, हर थोड़ी देर में पूछना कि भाई। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब कर रही हैं। जैसा कि आपके उसमें एक्सर्प्ट में भी हल्का सा मुझे फ़ील हो रहा है कि डेफ़िनेटली आप डिस्टर्ब फ़ील कर रहे हैं, तभी आपने ये बात करना ज़रूरी समझा है। तो फिर ये ऑब्सेशन की तरफ जा रहा है और इसको जो है तवज्जो देनी चाहिए। करना अब आपने क्या है, करना ये है कि पहले अब आप सोचिए कि आप एज़ अ पर्सन, आपकी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट आर द थिंग्स कि जो आप इस लड़की से मिलने से पहले आपको मज़ा आता था करने में, उनसे रिकनेक्ट करने के सोचें। अपनी हॉबीज़ और अपने लाइफ गोल्स पे थोड़ा फोकस करने का सोचें। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता कि आपकी क्या हॉबी है और क्या लाइफ गोल्स हैं, तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट असर एंड और डेवलप करने का सोचें। कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, कोई सर्टिफिकेशन ज्वाइन कर लें, कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें। आजकल फ्री इतनी चीज़ें मिल जाती हैं लर्निंग के लिए। तो अपने बाकी पीयर्स से मिलें, अपने बाकी जो है वो सोशल सर्कल में थोड़ा सा एक्टिव हों, ताकि आप सारा वक्त उस इंडिविजुअल के बारे में ना सोचते रहें। थोड़ा सा और चीज़ों के साथ भी इंटरमिंगल करें, तो ज़रा इस का इफ़ेक्ट डाइल्यूट होगा। और ये भी सोचें कि सबको एक लिमिटेड सी लाइफ मिली है, तो हम सब की लाइफ एक लिमिटेड है, और कब कितनी लिमिट है ये भी हमें पता नहीं है ना। तो इसमें ये ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ के सर्टेन गोल्स बनाएं, और फिर जब आपके गोल्स आपके फोकस में होते हैं तो आपको मोटिवेशन रहती है लाइफ में कंटिन्यू स्ट्रगल कंटिन्यू करने की, विच इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, अगर आपको मुश्किल हो रहा है ख़ुद से इस चीज़ से कोप करने में, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इसमें कोई शर्म नहीं है कि आप साइकोलॉजिकल हेल्प सीख करें, काउंसलिंग सीख करें, एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें, जो कि आपको हेल्प कर सकता है इन सब चीज़ों के साथ कोप करने में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं हमें दवाई दे दें क्योंकि हमें ज़ुकाम ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी वैसे ही हैं, इनके लिए भी हेल्प सीख करना बुरी बात नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बहुत जल्दी बोला है और मैं बहुत पॉइंट्स पे रही हूँ, उसके बावजूद 16 मिनट्स हो गए, विच इज़ गुड आई थिंक, है ना, क्योंकि हमने पहले शुरू में भी तो कुछ बातें की हैं। इट्स फाइन आई थिंक। सो दूसरे क्वेश्चन की थीम है जनाब कि कैन आई बी फ्रेंड्स विद माई एक्स। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन तो ये है, और एक क्वेश्चन और मुझे याद है, आई थिंक वो किसी खातून ने पूछा था, और वो भी मैरिड हैं और जो उनके एक्स हैं वो भी मैरिड हैं, एंड आई थिंक दे आर बोथ मैरिड विद किड्स नाउ, एंड दे स्टिल कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। और आई थिंक उनका भी ये प्रॉब्लम था कि हाउ डू आई ओवरकम दिस, और क्या ये गलत है, कैसे ओवरकम करूँ मैं ये फ़ीलिंग्स, क्योंकि अभी भी उनके एक्स को भी उनके लिए फ़ीलिंग्स हैं और उनको भी अपने एक्स के लिए फ़ीलिंग्स हैं, और दोनों अब अलग अलग इंडिविजुअल्स के साथ शादी हुई हुई है उनकी, उनके बच्चे हैं। अच्छा, मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ऑब्वियसली ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज़ होते हैं, और मैं ऐसे 15-15 मिनट्स में आप लोगों को काउंसलिंग सेशन नहीं दे पाती, इसलिए भी बात लंबी हो जाती है। क्योंकि जो इश्यूज़ होते हैं जैसे फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, उनकी तरह साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी सर्टेन लेयर्स में होती हैं। परत जब आप उठाते हैं तो उसके अंदर कुछ और वजूहात होती हैं, कुछ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसके प्रीडिसेसिंग फैक्टर्स होते हैं, तो वो सारे आपको देखने पड़ते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसके होने से क्या हो रहा है, और
क्या फैक्टर्स ट्रिगर कर रहे हैं, एट्सेट्रा, क्या इमोशनल एस्पेक्ट्स इमर्ज हो रहे हैं, बिहेवियर कैसा हो रहा है, वगैरह वगैरह, और क्या प्रॉब्लमेटिक रेंज में हैं चीज़ें या नॉर्मेटिव रेंज में हैं, क्या है, सारा कुछ देखना पड़ता है। तो एक पूरा जो कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस है, उससे फिर फर्दर ऑन जो है वो मैप आउट होता है ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, तो अभी इसमें जो है मुझे कुछ इमोशनल चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। आई थिंक एक्चुअली मेरे पास जो स्लाइड्स हैं उसमें एक ही क्वेश्चन डाला हुआ है, सो आई डोंट नो इफ़ वी कैन आल्सो ऐड द अदर क्वेश्चंस में जो इसके रेलेवेंट हैं वो भी ऐड कर दें। तो इमोशनल चैलेंजेस इसमें लग रहे हैं, और अटैचमेंट लिंगर ऑन हुई हुई है एक्स के साथ डेफिनेटली, और आई थिंक बाउंड्रीज़ का भी इशू जो है वो इमर्ज हो रहा है। सो अब अगेन मैं ये हर किसी को ही कहना चाहूँगी कि जब भी आप मुझे क्वेश्चन भेज रहे हैं, आई अंडरस्टैंड कि जो आप फील कर रहे हैं वो इनवैलिड नहीं है, वो फीलिंग बहुत वैलिड है और नॉर्मल भी है। कोई भी इंडिविजुअल जब ब्रेकअप से गुजर रहा होता है, रोमांटिक ब्रेकअप होता है, जब रिलेशनशिप ब्रेकअप, चाहे वो आपका मैरिज के बाद हो या उससे पहले आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं तो उसके बाद हो, तो इट टेक्स एन इमोशनल टॉल। और ये सिर्फ इमोशनल टॉल ज़ुबानी कलामी चीज़ों का नहीं है कि ये बस दिमाग, क्या तुम ऐसे ही पागलों वाली बातें कर रहे हो या कर रही हो, ये एक्चुअली न्यूरोलॉजिकल लेवल पे हो रहा होता है। क्योंकि लव वाला जो सीन है उसमें वो कोई डायलॉग शायलॉग मशहूर है ना कि दिमाग का लोचा है, तो ये वाकई दिमाग का ही लोचा है। इट इज़ एक्चुअली समथिंग दैट इज़ हैपनिंग एट योर न्यूरोलॉजिकल लेवल। तो केमिकल्स की वजह से एक सर्टेन इंडिविजुअल के साथ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हो जाती है। ऑक्सीटोसिन और डोपामीन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं उस अटैचमेंट, उस बॉन्डिंग को रीइंफोर्स करने में। इट एक्चुअली एक्ट्स लाइक अ ड्रग। तो जब आपको वो ड्रग नहीं मिल रही होती तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग होती है टू हैव दैट पर्सन नियर यू, और उससे बात करने की, उसको देखने की, उसको स्टॉक करने की। सोशल मीडिया आजकल जो है वो बड़ा इसने एक्सेसिबल कर दिया हर चीज़। तो ये सब होता है, ये सब वैलिड चीज़ें हैं, लेकिन ये जब हो रही हों तो ये समझना चाहिए कि इसको एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये आपके लिए और दूसरे के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। इन सब चीज़ों को फेस करके ही आप जो है अपने इमोशंस को कोप कर सकते हैं, और आपको जो है एक इमोशनल अवेयरनेस और अपनी इमोशनल स्टेट को दोबारा से आप नॉर्मलाइज कर सकते हैं, और अपनी जो अटैचमेंट है उस पर्सन से उसको कट ऑफ कर सकते हैं। क्योंकि इवेंचुअली ज़ाहिर है अगर आप कह रहे हैं कि वो एक्स है तो आपका उससे रिलेशनशिप तो नहीं रहा है ना, तो अब आपने मूव ऑन करना है। अगर एक्स जो भी है, लड़का है कि लड़की है, वो जो है घिरी जा रहा हूँ, आई थिंक ये लड़के हैं और इनकी एक्स लड़की हैं। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन था उस केस में वो खातून ने पूछा था, लेकिन उस केस में वो दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। तो अब इसमें देखें प्रेफरेंसेस की बात है कि आप अगर तो आप अब ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, आई थिंक इसीलिए नहीं हमने इसको ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे बीच में लगा कि थीम सेम है। बहरहाल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखें, as per the situation, the ex has moved on, that person has moved on, that girl has moved on, so you eventually need to move on as well. आप जो है उससे अगर दोस्ती करना चाहेंगे, इसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर इमोशनल स्टेट एट दैट मोमेंट। इट डिपेंड्स उस रिलेशनशिप को जो है वो ख़त्म हुए कितना टाइम हो गया है। इट डिपेंड्स कि आपका एक्स जो है वो लड़की जो है वो आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहती है या नहीं। इट डिपेंड्स कि अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं या जाने वाले हैं तो आपकी जो प्रेजेंट पार्टनर है वो इसके बारे में क्या फ़ील करेगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप अपने एक्स के साथ क्यों रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं। क्या ये इसलिए है कि आपका किसी ना किसी तरह से कनेक्शन बना रहे, और आपको ये सारी चीज़ें एड्रेस करनी पड़ेंगी। ये एक डबल एज स्वॉर्ड होती है ब्रेकअप के बाद दोस्ती मेंटेन रखना। और क्योंकि जो है एज आई सेड कि लव जो है वर्क्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रग, और फिर जब वो ड्रग मिलना बंद हो जाती है तो उसके ऊपर हुई भी डिपेंडेंसी की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉल सिम्टम्स होने लगते हैं, जो कि फिजियोलॉजिकल होते हैं, न्यूरोलॉजिकल होते हैं। ये कहने में बड़ी फ़ज़ूल सी बातें लगती हैं कि क्या साइकोलॉजी का फ़िज़ियोलॉजी से क्या ताल्लुक़ है, लेकिन बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आप खुश होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आप हँसते हैं, और जितनी भी आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपको अच्छा फ़ील कराती हैं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है।
तो बहुत सी चीज़ों का हमारी जो हमें सिर्फ साइकोलॉजिकल लेवल पे यानी उड़ती उड़ती बातें लगती हैं, उनका आपकी एक्चुअली सेहत जो कॉन्क्रीट सेहत हम कहते हैं ना, एमबीबीएस वाली सेहत, उससे बहुत ताल्लुक़ है आपका। तो इसी तरह ये वाली जो चीज़ें हैं जो लव एंड रिलेशनशिप और ब्रेकअप्स और फ्लर्ट और चीटिंग आगे क्वेश्चन है उसमें, इनका भी न्यूरोकेमिकल काफ़ी कॉन्टेक्स्ट है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आप ये सोचिए कि आप क्यों चाह रहे हैं अपने एक्स से जो है मेंटेन रखना रिलेशनशिप, और मज़ीद ये कि इज़ शी विलिंग टू डू दैट, एंड इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप इज़ योर पार्टनर ओके विद दैट, डू यू प्रायोरिटाइज दैट रिलेशनशिप मोर देन द रिलेशनशिप विद योर एक्स, क्यों, क्या मकसद है आपका, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और आपके लिए ये काफ़ी इमोशनली ट्रिगरिंग हो सकता है, डिस्टर्बिंग हो सकता है, स्पेशली अगर आपकी जो वो एक्स हैं वो मूव ऑन कर चुकी हैं। तो जब वो अगर आपसे कोई अपनी हैप्पी इवेंट्स शेयर करेंगी या आप उन्हें देखेंगे, तो इट कैन बी इमोशनली डिस्टर्बिंग एंड ओवरवेलमिंग फॉर यू। But again, as I said, it will depend a lot on the context or what is actually happening or why you are feeling that way. क्योंकि ब्रेकअप के बाद एक्चुअली तो दो पार्टनर्स को एक दूसरे को टाइम देना चाहिए टू प्रोसेस द ब्रेकअप कि एक्चुअली हो गया है। सो यू हैव टू कम टू अ न्यूट्रल लेवल टू रियलाइज़ कि अब क्या करना है, राइट। सो जब आप अपने एक्स के साथ दोस्ती कर लेते हैं तो बाउंड्रीज़ जो हैं वो बहुत ब्लर हो जाती हैं और आपको अपनी फीलिंग्स प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिलता, स्पेशली इन द सिचुएशन अगर जैसे उस लड़की की शादी हो गई है या वो मूव ऑन कर चुकी है या उसकी मंगनी हो गई है या उसी ने ब्रेकअप किया आपसे और वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती हैं, आपको इमोशनल लेवल पे बहुत डिस्टर्ब कर सकती हैं और मज़ीद ख़राबियाँ भी हो सकती हैं। तो आप सबसे पहले तो अपना एक कड़वी दवा खाएं और ख़ुद से पूछें ऑन अ वेरी ऑथेंटिक लेवल कि आप क्यों अपनी एक्स से दोस्ती करना चाह रहे हैं। क्या आप जेन्युइनली कंफर्टेबल फील करते हैं और आपकी एक्स भी करती हैं, या फिर इट इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़ टू स्टे कनेक्टेड विद हर। तो अपने मेंटल पीस के लिए मेरे हिसाब से अपनी बाउंड्रीज़ का ख़्याल ज़रूर रखना चाहिए। और that's my 2 cents about the situation. I always say कि boundaries are like the magic pill in psychology, और boundaries का होना ना होना, चाहे वो हम मैरिटल रिलेशनशिप्स में देखें, इंटीमेट रिलेशनशिप्स में देखें, इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल हेल्थ के इंस्टेंसेस में देखें, हम इन लॉज के साथ जो प्रॉब्लम होता है लड़कियों को स्पेशली कलेक्टिविस्ट कल्चर्स में, उसमें देखें, बाउंड्रीज़ मैटर सो मच। जब भी बाउंड्री वायलेट होगी, बाउंड्रीज़ का ख्याल, रिस्पेक्ट नहीं रखी जाएगी, बाउंड्रीज़ बनाई नहीं जाएंगी, इट डजंट वर्क। अच्छा जी, थर्ड क्वेश्चन, दिस आई फिनिश्ड इन 10 minutes. It's an achievement. ओके अच्छा जी, सो क्वेश्चन सीरियस है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ लाइट करने के लिए, चुटकुले तो नहीं है, ऐसे ही कुछ बोल जा रही हूँ। अगेन मेरी ट्रेन ऑफ थॉट इधर उधर जाने लगी है। बिफोर दैट आई वांट रीड द क्वेश्चन 3 और फिर मैं आंसर करती हूँ। क्वेश्चन 3 का थीम है कि भाई, why do I keep checking her social media after the breakup? Again, I think this also relates to question 2 कि ये भी जो है अपने एक्स को ओवरकम करने में, जो ब्रेकअप है उसको ओवरकम करने में मुश्किल हो रही है। अगेन द डोपामिन एडिक्शन सर्किट जो है इनके ब्रेन का, वो ट्रिगर हो रहा है। ब्रेन इज़ क्रेविंग फॉर क्लोजर हेयर। अच्छा जी, सो अगेन आपके लिए भी वैलिडेशन चेक कि आपकी जो फीलिंग है वो नेचुरल है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद यू फीलिंग दैट वे एंड ट्राइंग टू सी। और ये लड़के हैं कि लड़की हैं, स्टोरीज़ डालती है, ये भी लड़के हैं। अच्छा, तो इनकी भी वो जो ख़ातून हैं वो जब मुख्तलिफ़ चीज़ें डालती हैं, जब वो स्टोरीज़ डालती है तो मुझे लगता है कि वो खुश है और मुझे याद भी नहीं करती। मैं ख़ुद से कहता हूँ अब देखना छोड़ दो, लेकिन अगले दिन फिर वही रिपीट करता हूँ। ये क्यों हो रहा है, इस साइकिल से कैसे निकलूँ? क्यों हो रहा है का तो अगेन मैं पहले क्वेश्चन में जवाब दे चुकी हूँ कि ड्यूरिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है, केमिकल डिपेंडेंसी। आपका ब्रेन जो है, न्यूरोट्रांसमीटर एक होता है, केमिकल कंपाउंड होता है, आप सोचें डोपामीन, जो आपके हैप्पी फील गुड
ब्रेन सेंटर्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। तो जब भी आप अपने पार्टनर से मिलते हैं, अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, उसके साथ कहीं अच्छी जगह जाते हैं, जब भी आप अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं, तो डोपामाइन रिलीज़ होता है। डोपामाइन तभी रिलीज़ होता है जब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, एक अच्छा वर्कआउट करें तो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। और चॉकलेट खा रहे हों, अपने पार्टनर को जो है आप उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो डोपामाइन एक्चुअली एक आपको अच्छा फ़ील कराने का कुदरती निज़ाम है। डोपामाइन का रिलीज़ जो है वो किसी स्ट्रॉन्ग ड्रग से कम नहीं है। इट इज़ द नेचुरल ड्रग कि जो हमारे ब्रेन में इन इटसेल्फ बनती है, राइट? इससे हम चीज़ों के साथ अच्छी एसोसिएशंस कायम करते हैं। तो यही आपकी आपकी उन गर्लफ्रेंड या आपने रिलेशनशिप आई थिंक अपना नहीं डिफ़ाइन किया, आपकी बीवी थी, गर्लफ्रेंड थी, फियांसी थी, क्या थी? तो बहरहाल जो आपकी रोमांटिक पार्टनर थी, उनके साथ भी रही आपकी, राइट? अब वो कनेक्शन नहीं है, तो आपका ब्रेन जो है वो क्रेव कर रहा है कि किसी तरह वो कनेक्शन रिवाइव हो। अब वो चाहे उनको सोशल मीडिया अपडेट्स उनकी देखने से आपको मिल रहा है, थोड़ी डोजेज मिल रही है, राइट? सो यू फील गुड, योर ब्रेन इज़ एक्चुअली क्रेविंग टू बी अराउंड दैट पर्सन अगैन, टू फील गुड, टू गिव यू द सेम गुड फीलिंग। तो अब एक बात याद रखें कि जो इमोशंस आप फ़ील कर रहे हैं वो उसको हम एक क्लोज़र लूप कहते हैं, राइट? और ये उस क्लोज़र लूप की वजह से ही सरफ़ेस हो रहे हैं। एक्चुअली आपका ब्रेन बार-बार इन क्लोज़र लूप्स को रिविज़िट करके ट्राई कर रहा है कि आप जो है इस सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए वो सॉल्यूशन वेरिएंट्स ढूँढ रहा है। तो ये एक इल्यूज़न कि आप और देख लेंगे तो शायद क्रेविंग कम हो जाएगी। तो आपने ख़ुद को इस इल्यूज़न से निकालना है। इससे निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, अगेन जैसे मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि बाउंड्रीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको बाउंड्रीज़ अपनी अवेयर रहनी चाहिए और उस लड़की की भी बाउंड्रीज़ का अवेयर होना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है हमारे अगेन कलेक्टिविस्ट कल्चर में बॉयज़ जो हैं वो रिजेक्शन को बहुत स्ट्रांगली ले लेते हैं अपनी सेल्फ इस्टीम पे। अगर आप किसी लड़की को आप नहीं, कोई भी लड़का जो है किसी लड़की को प्रपोज़ करता है या उसको कहता है कि जी मैं आपको पसंद करता हूँ, वो लड़की उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती, तो उसको कॉन्स्टेंटली स्टॉक करना, उसको मज़ीद हरास करना या उसको बार-बार कहना, इट इज़ नॉट राइट फॉर यू, फॉर दैट गर्ल ऑब्वियसली। it does have to your mental health, to her mental health. Boundaries so important, like so important. जैसे खाना जो है ना वो नमक के बगैर इज़ फजूल, इनफैक्ट गरम मसाले के बगैर फजूल। बाउंड्रीज आर द गरम मसाला दैट बाइंड्स ऑल द थिंग्स टुगेदर। सो बाउंड्रीज प्लीज़ ब्लर नहीं होने दें। और आपको ऑब्वियसली अनफॉलो बटन पता है, अनफॉलो हर। टेक द हार्ड स्टेप टू इस्टेब्लिश अ बाउंड्री। पहली बाउंड्री आपको ख़ुद से अपने ऊपर थोड़ी सख्ती करके इस्टेब्लिश करनी होगी। अपनी एक्स को ब्लॉक कर दें, अनफॉलो कर दें और अपना ख्याल करें कि अगर वो लड़की मूव ऑन कर चुकी है, आई थिंक इसमें है कि मूव ऑन कर चुकी है, क्योंकि आप लिख रहे हैं ना कि वो अगर स्टोरीज़ डालती हैं और खुश नज़र आती हैं तो आपको होता है कि वो तो मूव ऑन कर गई हैं और आपको याद भी नहीं करती। तो it looks like कि she is happy with whatever is happening with her life, और वो actually she is looking forward in her life। तो आपको भी देखना चाहिए। और ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स आते हैं और अगर वो नहीं चल सके तो अब आप क्या करेंगे? वो तो मूव ऑन कर गई है, तो आप इस ऑब्सेशन में बैठे तो नहीं रह सकते, राइट? सो अपने आप को उससे निकालने के लिए एक सख्त स्टेप लेना पड़ेगा आपको कि आप पहली बाउंड्री यही इस्टेब्लिश करें कि आपने उसके सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करना, नहीं देखनी उसकी अपडेट्स। आपने ये भी नहीं सोचना कि वो आपके बारे में सोच रही है और ये भी नहीं सोचना कि शायद वो आपके बारे में सोचती ही नहीं है। आपने भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अपने लाइफ गोल्स और अपनी हॉबीज़, अपनी एक्टिविटीज़ जो आप उस लड़की से मिलने से पहले करते थे, उनको रिविज़िट करना है। और अगर आप भूल चुके हैं कि आपको क्या करना था, क्या पसंद था, तो दोबारा से एक लिस्ट बनाएँ। देखें कि आजकल दुनिया में जो कुछ हो रहा है, क्या आप उसमें से कुछ सीखना चाहते हैं? क्या आप अपना कुछ 2 सेंट क्या छोड़ के जा सकते हैं इस दुनिया में? देखिए वर्ल्ड जो है इट्स लाइक एन ओशन। हमारी बकेट ऑफ वाटर में से हम क्या यूनिक इस ओशन में छोड़ के जा सकते हैं टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, बिकॉज इवेंचुअली वी ऑल आर हेयर फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम और हमें नहीं पता कि हमारी जो क्लॉक टिक कर रही है दैट इज़ टिकिंग फॉर हाउ लॉन्ग। सो आप ये सोचिए कि आप इस फाइनाइट लाइफ में किस तरह का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी और इस ग्रेटर वर्ल्ड डायनामिक्स में ऐड करना चाहते हैं। क्या है जो सिर्फ आप अच्छे से कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, या आप उसके बारे में इतने पैशनेट हैं कि आप उसके बाद उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो उससे तो बेहतर, आपसे तो बेहतर वो चीज़ कोई और कर नहीं सकता। तो
कैसे आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लोगों की लाइफ में बेहतरी ला सकते हैं। आई डोंट नो, सो ये सोचें, अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट, अपने अदर सोशल सर्कल को रिविज़िट करें। और एक बात याद रखें कि जो ट्रू हीलिंग है ना, वो आपके अंदर से आती है। देखें, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको चोट लग गई है ना, कट लग गया है लेट्स से, तो क्या होता है, डॉक्टर उधर बहुत डीप कट है तो उसको स्टिच लगा देगा, राइट? या हम सनी प्लास लगा देते हैं थोड़ा सा कट लगा है तो। क्या सनी प्लास या स्टिचेस वो पकड़ के आपका जोड़ना शुरू कर देते हैं? इस सनी प्लास या स्टिचेस जो हैं वो आपस में कोई सिलाई कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? एक्चुअली क्या हो रहा होता है? द डॉक्टर इज़ जस्ट जॉइनिंग योर स्किन टुगेदर टू गिव योर स्किन सेल्स द अपॉर्चुनिटी टू हील themselves, right? आपकी स्किन खुद हील कर रही होती है। हीलिंग इज़ हैपनिंग फ्रॉम इनसाइड आउट, राइट? आपकी साइकोलॉजिकल हीलिंग भी इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होती है। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़, जिस लूप में आप फंस गए हैं, ये लूप, क्लोजर लूप में को बार बार विज़िट करना और इसको जो है वो रीट्रिगर करते रहना, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ कंटिन्यूटी के लिए अच्छा नहीं है, आपके गोल्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि द अदर पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन क्लियरली। और एज़ फार एज आई कैन असेस फ्रॉम योर क्वेश्चन, तो आपको भी मूव ऑन करना चाहिए। और इट इज़ नॉट अबाउट द अदर पर्सन। अगर वो रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, तो अगर वो अदर पर्सन मूव ऑन नहीं भी की हैं, तो कोई वजह होगी जिसकी वजह से आप लोगों ने रिलेशनशिप को एक एंड पे लाकर खड़ा किया है और अब आप उसको रिवाइव नहीं कर रहे, राइट? तो इस बारे में सोचिए। और अगर ये अगेन ज़्यादा ओवरवेलम हो रहा है, आपको खुद से कोप करना, तो सीक मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ हेल्प, मेंटल हेल्थ हेल्प फॉर इट। अच्छा जी, दिस इज़ the last question. The next one is the last question. Is flirting cheating or just harmless fun? अगर मुझे या मेरे ये छोटा क्वेश्चन है तो मैं पढ़ रही हूँ, मुझे या मेरे पार्टनर को ही बुरा नहीं लगता, तब तो सही है ना? अब इसका मैं क्या बताऊँ आपको, एज अ साइकोलॉजिस्ट। यानी आप कह रहे हैं कि अगर चीटिंग करना आपको और आपके पार्टनर को, अभी पता नहीं मुझे चला, लड़के ने पूछा, लड़की ने पूछा है, तो जिन्होंने भी पूछा है, अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम, उनके पार्टनर को या उनको फ्लर्ट और चीट करना मसले वाली बात नहीं लगती है और फ़न लगता है। तो वो कह रहे हैं क्या फ्लर्ट, अच्छा वो चीट नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं क्या फ्लर्ट करना चीटिंग है या जस्ट फ़न है? और जो भी कह रहे हैं या कह रही हैं, उन्होंने कहा कि अगर मुझे और मेरे पार्टनर दोनों को ही प्रॉब्लम नहीं है, तब तो सही है ना? तो इस चीज़ पे जो तब तो सही है ना, इस पे मैं बोलूँगी कि आपको किसी का सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल नहीं चाहिए। अगर आपको साइकोलॉजिकली और इंट्रिंसिकली लग रहा है कि सही है, तो दुनिया गई घास चरने, राइट? मतलब आप मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी? काज़ी ने तो करना होता है कुछ ना कुछ। लेकिन द थिंग इज़ कि मैं अब इसमें क्या कहूँ? देखें, इस चीज़ को थोड़ा-सा हम रीवर्क करते हैं। रिलेशनशिप्स, सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? इट इज़ सो एम्बिगुअस। मैं आपको कहूँगी ऐसे करें, लड़ाई ना हो और सब लोगों की बात मानें, पार्टनर्स एक दूसरे की बात मानें, हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस जाए, बीवी जो है घर में किचन में खाना बनाए, वगैरह-वगैरह, बच्चों को सँभाले, या क्या होता है अच्छा रिलेशनशिप? लड़ाइयाँ ना हो उनमें। अगर लड़ाई हो, गुस्सा भी हो, तो चुप रहें और या ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाएँ, क्या करें? व्हाट इज़ द बेसलाइन ऑफ अ गुड रिलेशनशिप? एक्चुअली ये सारी चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। रिसर्च डेटा जो है वो कुछ स्टैटिस्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में हमें अवेयर करता है कि कौन से रिलेशनशिप्स सैटिस्फैक्शन ज़्यादा रखते हैं, कौन से रिलेशनशिप्स में ऐसी कौन सी इनहेरेंट क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उनकी लॉन्जेविटी इंक्रीज़ करती है या पार्टनर सैटिस्फैक्शन इंक्रीज़ करती है, एट्सेट्रा। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये सारी चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव हैं। आपके और आपके पार्टनर के लिए रिलेशनशिप डेफिनेशन क्या है? क्यों हैं आप उस रिलेशनशिप में जिसमें आप लोग हैं एक दूसरे के साथ? अगर आप दोनों को फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, तो मैं या कोई भी और साइकोलॉजिस्ट इसके बारे में मतलब आप क्यों पूछ रहे हैं कि ये सही तो है ना? हो सकता है इस है ना में एक सर्टेन लेयर ऑफ मीनिंग छुपा है जो कि एक्सप्लोर होना चाहिए एक थेरेपी सेशन में, आई थिंक। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कोई चीज़ से आप सैटिस्फाइड हैं, तो आप कभी भी उसके बारे में सेकंड गेसिंग नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है आपका पार्टनर सैटिस्फाइड है? क्या आप सैटिस्फाइड हैं? क्या आप दोनों इस रिलेशनशिप में फॉर द लॉन्ग रन आए हैं, या इट्स जस्ट फन, जो कि आजकल अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड हो गया है ना, फन एंड गेम्स हो गई हैं रोमांटिक रिलेशनशिप्स। ये सारे क्वेश्चंस आपको रिविज़िट करने चाहिए। फ्लर्टिंग जो है एक प्लेफुल गेम लग सकता है आजकल की जनरेशन को और आजकल की जनरेशन से पहले की भी जनरेशन्स को, लेकिन इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू थिंक, इट इज़ अबाउट
how your partner feels in a relationship and how you feel in a relationship, what that relationship means to both of you, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसकी फाउंडेशंस क्या हैं, उसकी बाउंड्रीज़ आप दोनों के ख्याल में क्या है। अगर आपके पार्टनर को एक चीज़ बुरी लग रही है तो ऑब्वियसली आप वो क्यों करना चाहोगे, अनलेस योर पार्टनर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपके पार्टनर को उससे नहीं अफेक्ट हो रहा कि आप किसी और से फ्लर्टेशियस हो रहे हो, तो और आपको भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा अगर आपका पार्टनर किसी और से फ्लर्टेशियस हो रहा है, तो मे बी रिलेशनशिप की बाउंड्रीज़ की डेफिनेशन आप दोनों के लिए डिफरेंट है। लेकिन आपको अपने क्वेश्चन के जो लास्ट वाला फ्रेज़ है कि अगर हम दोनों को बुरा नहीं लगता तब तो ये सही है ना, इस पे गौर करना चाहिए कि आपको ये फीलिंग क्यों आई। क्या ये इस वजह से आई कि सोसाइटल एक स्टीरियोटाइप सर्टेन है, एक नॉर्मेटिव जो सोसाइटी का हमारा मेकअप है वो ऐसा नहीं है। अच्छा, इसमें एक और भी बात मैंने किसी से सुनी और वो मेरे बहुत अच्छे कॉलीग हैं, उन्होंने ही कहा कि इंटेग्रिटी, उन्होंने इंटेग्रिटी पे एक जुमला कहा था। मैं थोड़ा-सा वो हो गई थी, ऑफ लूप हो गई थी फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन, तो ड्यू टू थिंग्स हैपनिंग इन पर्सनल लाइफ, राइट? तो आप नहीं एक पैशन प्रोजेक्ट को फिर उतना टाइम आपके पास नहीं निकल रहा होता तो नहीं आप दे पाते, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं ज़िंदगी में। तो उन्होंने, खैर वो मेरे जो कलीग हैं उन्होंने मुझे थोड़ा-सा वो कहा कि आप रीस्टार्ट करें। तो उन्होंने जुमला बोला कि आजकल इंटेग्रिटी, लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें इंटेग्रिटी नहीं होती, तो इंटेग्रिटी वाली चीज़ें होनी चाहिए ज़्यादा और वी शुड मेक नॉइज़ विद इंटेग्रिटी। तो मुझे बड़ा अम्यूजिंग लगा वो फ्रेज़ ना, स्पेशली द वर्ड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या है ना, अब इंटेग्रिटी मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और होगी, पड़ोसी के लिए कुछ और होगी, मेरे अम्मा अब्बा के लिए कुछ और होगी, मेरे इन लॉज़ के लिए कुछ और होगी, मेरे हस्बैंड के लिए कुछ और होगी, मेरी टीचर्स के लिए कुछ और होगी, एक्सटेंडेड रिलेटिव्स के लिए कुछ और होगी। इंटेग्रिटी के बहुत से मीनिंग्स हो सकते हैं, राइट? इसकी एक सर्टेन डेफिनेशन भी है, लेकिन बहुत सब्जेक्टिव हैं ये चीज़ें, राइट? और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटल राइट एंड रॉन्ग्स एक सर्टेन है जो कि मॉरल और इथिकल बेसलाइन इस्टेब्लिश करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी डेप्थ्स और न्यूएंसेस आ जाती हैं जिनकी बिना पे आई थिंक एज एक्सपर्ट्स और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट तो नहीं मैं कहूँगी, आई एम स्टिल लर्निंग। तो जो भी है, हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन के एक सर्टेन लेवल पे रहते हुए हमें आई डोंट फील गुड अबाउट सेइंग थिंग्स विद फाइनलिटी, क्योंकि ये इसमें बहुत सी सब्जेक्टिव एलिमेंट्स, कल्चरल नुएंसेस आ जाती हैं, क्यों कैसे वाली चीज़ें बहुत आ जाती हैं। तो ये तो तय है कि इंटेग्रिटी बरकरार रखनी चाहिए, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के लिए इंटेग्रिटी है क्या? क्या आपके और आपके पार्टनर के लिए इंटेग्रिटी की डेफिनेशन में दूसरे लोगों से फ्लर्ट करना नहीं आता है? अगर नहीं आता तो इट्स फाइन। एंड क्या आप लोग सिर्फ इसलिए प्रेशराइज फील कर रहे हैं, आपको मेरा इवैल्यूएशन, एनालिसिस, अप्रेजल ऑफ योर सिचुएशन इसलिए चाहिए कि जो आप लोग कर रहे हैं वो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे तो गलत नहीं है, या आप सोसाइटी की वजह से प्रेशराइज फील कर रहे हैं, एट्सेट्रा। ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए, राइट? क्योंकि जो बाउंड्रीज़ हैं, रिलेशनशिप बाउंड्रीज़, ये बहुत डिबेटेबल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द पार्टनर्स mutual understanding, or why people are flirting, or why people feel the need to flirt even when they are in an intact रोमांटिक रिलेशनशिप। आप एक रोमांटिक पार्टनर के साथ हैं, आपका पार्टनर जिंदा सलामत आपके साथ है, वाई आर यू नॉट फ्लर्टिंग विद दैट पर्सन, एंड वाई फ्लर्टिंग विद योर इंटीमेट पार्टनर doesn't seem to be as fun as विद अदर्स। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए, अपने आप से, अपने पार्टनर से डिस्कस करना चाहिए कि भाई क्यों ऐसा होता है। एक और क्वेश्चन इसके साथ हमने मर्ज किया हुआ है, फ्लर्टिंग चीटिंग है और कि हार्मलेस फन है। दूसरा क्वेश्चन था कि वाई कांट आई मूव ऑन आफ्टर बीइंग चीटेड ऑन। ये एक लंबा क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं रही, लेकिन जो इसका हमने थीम अखज़ किया वो ये है कि वो उनको प्रॉब्लम हो रहा है ना, उनके पार्टनर ने उनसे चीट किया और अब वो आई थिंक ब्रेकअप तो हो गया, लेकिन दैट पर्सन इज़ फाइंडिंग इट हार्ड टू मूव ऑन। तो उन्हें हार्ट ब्रेक अनबेरेबल लग रहा है और ऑब्वियसली उनको जो है न्यूरोलॉजिकल अटैचमेंट हुई हुई है, साइकोलॉजिकल इमोशनल अटैचमेंट है अपने पार्टनर से, और फिर उसमें ब्रेकअप का भी, बिट्रेयल का भी एक पेन, हार्ट एक ऐड हो गया है। तो क्या वो स्टेप्स लें टुवर्ड्स हीलिंग, क्या करना चाहिए उन्हें? तो अच्छा, अब मैं वापस वो चीटिंग, फ्लर्टिंग और फ़न वाले क्वेश्चन पे ही आ रही हूँ और फिर मैं इसका आंसर करूँगी। ये दोनों चीज़ें काफ़ी कनेक्टेड है एक्चुअली। तो अक्सर औकात जो है ना, लोग फ़न और गेम्स वाली स्पिरिट में कहेंगे कि भाई, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप पूछें कि
ये क्यों आप कर रहे हैं, और आप खुद से ये पूछें कि क्या मेरा पार्टनर भी ऐसा करेगा तो मुझे ठीक लगेगा। तो अक्सर लड़के अब इस सिचुएशन में तो ये कह रहे हैं कि इनके पार्टनर को भी ठीक लगता है, तो अक्सर लोग कहेंगे भाई फ़न और गेम्स में, क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है फ्लर्ट करने में, तो कहेंगे हाँ हाँ मेरे तो पार्टनर को भी सही लगता है भाई, उसको भी कोई मसला नहीं है। लेकिन एज़ आई सेड, आपको फिर रिवर्ट करना पड़ेगा टू द कोर फाउंडेशंस ऑफ योर रिलेशनशिप कि आप दोनों के लिए क्या मैटर करता है, आपका रिलेशनशिप के पिलर्स क्या हैं कुछ नॉन निगोशिएबल्स इन योर रिलेशनशिप के, जो ये वाली चीज़ें वायलेट होंगी तो भाई हमारे रिलेशनशिप की इंटेग्रिटी बरकरार नहीं रहेगी। आपका रिलेशनशिप किन चीज़ों पे खड़ा है ये इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है। आपके रिलेशनशिप के फाउंडेशंस क्या हैं, पिलर्स क्या हैं। तो क्या आप एक दूसरे को लॉन्ग टर्म में साथ देखते हैं या नहीं, फ्लर्टेशियस या लॉयल्टी की जो ट्रेसपासिंग है, इसको आप अपने रिलेशनशिप में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, राइट। फिर आपने जो चीज़ शेयर की हुई है, जैसे कि देखिए हेल्दी रिलेशनशिप्स जो है ना, एक बात तो तय है, उसमें कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसके बगैर कोई रिलेशनशिप नहीं चल सकता। वो चाहे मियाँ बीवी का हो, माँ बाप का हो, बहन भाई का हो, सास ससुर का हो, बहू का हो, एट्सेट्रा, अम्मा बेटी का हो, कम्युनिकेशन के बगैर नहीं चल सकता। क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया में जो है ना वो परफेक्ट नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मिस्टेक्स नहीं हम कर सकते, तो मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन जब आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो कुछ भी रिजॉल्व नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट्स आएंगे लाइफ में, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, लेकिन अगर आप उस चीज़ को वहाँ रिजॉल्व नहीं करेंगे तो वो चीज़ मज़ीद ख़राबियाँ और बिगाड़ पैदा कर देगी। और ऐसा नहीं है कि बिगाड़ से आगे बेहतरी नहीं हो सकती है, बिगाड़ से आगे भी बेहतरी हो सकती है, राइट। एक वो चाइनीज़ आर्ट है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट, वो उसमें जो उनके ब्रोकन यूटेंसिल्स होते हैं, प्लेट्स वगैरह टूट जाती हैं, उसको बड़े प्यार से वो लोग उस ब्रोकन पीसेस को जो है ना गोल्ड से जोड़ते हैं। तो इनफैक्ट वो टूटी हुई प्लेट्स बहुत प्यारी लग रही होती हैं, बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं, वो एक आर्ट बन जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट्स का आना, स्ट्रगल्स का आना, हर्डल्स का आना किसी रिलेशनशिप को इन बैड वे डिफ़ाइन करता है। इनफैक्ट उन हर्डल्स को क्रॉस करना आपकी रिलेशनशिप रेजिलियंस की निशानी होती है, राइट। कि आपका रिलेशनशिप रेजिलियंट है, एक दूसरे के साथ इतना कंफर्ट होना, एक दूसरे की इतनी केयर होना कि अगर आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप अगले को जो है वो इतना वो दे रहे हैं, कुशन दे रहे हैं कि वो अगर अपोलोजाइज़ कर रहा है तो आप सुन रहे हो उसकी अपॉलजी। आपको ट्रस्ट है अपने पार्टनर पे, आपको ये ट्रस्ट है कि आपका पार्टनर आपके बारे में बुरा नहीं सोच रहा, एंड यू गाइज नो कि व्हाट योर कोर रिलेशनशिप वैल्यूज़ आर। तो ये आपको सोचना चाहिए कि अगर आपके पार्टनर, अच्छा मुझे मैं स्माइल कर रही हूँ इस पर क्योंकि एक क्वेश्चन मुझे बहुत मज़े का लग रहा है कि वो उन्होंने पूछा ऐसे एक्चुअली, प्लीज़ डोंट टेक इट टू द हार्ट। आपने क्वेश्चन अपना फ्रेज़ बहुत मज़े में किया है कि अगर मुझे और मेरे पार्टनर को ही प्रॉब्लम नहीं है फ्लर्ट करने से तो क्या ये सही है। सो दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू मी। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, ठीक है। आपको बात करनी चाहिए अपने पार्टनर से कि भाई क्या है, और ये आपके माइंड में क्वेश्चन एक उभरा है कि क्या ये सही है। तो आई थिंक आपको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि आप ये क्यों सोच रहे हैं, कि ये वाली जो सोच आई है कि क्या ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये सही है, क्या आपकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं अबाउट योर रिलेशनशिप बाउंड्रीज़, और क्या अगर चेंज हो रही हैं तो आपको अपने पार्टनर से डिस्कस करना चाहिए। फिर मे बी ऐसा हो रहा है कि आपको फ़र्क पड़ रहा है अपने पार्टनर की इस फ्लर्टेशियस बिहेवियर से टुवर्ड्स अदर पर्सन, ठीक है। तो अब इट इज़ वेरी ईजी ना कि आजकल हम जैसे कह देते हैं फाइनलिटी के साथ कुछ भी कह देते हैं, कि मैं कह दूं कि जी हेल्दी रिलेशनशिप्स को ऐसे होना चाहिए, नहीं वैसे होना चाहिए, कि सॉरी पार्टनर्स को कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, या बच्चे होने चाहिए, 2 होने चाहिए नहीं 10 होने चाहिए, इंटेग्रिटी की डेफिनेशन कैसी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, कह तो सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन वी हैव टू रियली पॉज एंड थिंक एज एक्सपर्ट्स और प्रोफेशनल्स इन अ सर्टन फील्ड एज साइकोलॉजिस्ट। हमारे लिए आई थिंक ये लम्हा फ़िक्रिया है कि मेरे एज ग्रुप में और जो भी ग्रुप है ऑफ अपकमिंग प्रोफेशनल्स का, उनके लिए, कि क्या हम बातों बातों में जो सोशल मीडिया की दौड़ में हम हैं, इसमें हम उन्हीं स्टीरियोटाइप्स को तो नहीं प्रमोट कर रहे जिनके अगेंस्ट हम लोगों को अवेयर कराने की ट्राई करते हैं। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि सॉरी नहीं कहना चाहिए मियाँ बीवी को, या ये डेफिनेशन है कि फ़्लर्ट की, तो मैंने आपके दिमाग में एक सर्टेन इमेज बिठा दिया है, राइट।
और वो एक सर्टेन रिलेशनशिप प्रोफाइल बिठा दी है कि ये वाली प्रोफाइल वाला रिलेशनशिप ही अच्छा रिलेशनशिप होगा, और अब आप जो है वो उस रिलेशनशिप को अटेन करने की दौड़ में लग जाएंगे, और आपको होगा कि ये वाला मैं इस तरह का रिलेशनशिप बना लूँगा या बना लूँगी तो फिर ठीक है, फिर मैं सक्सेसफुल हो गया, फिर कोई बीमारी नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन टू रियली फिक्स थिंग्स फॉर गुड, फॉर रियल, हमें खुद से डिफ़िकल्ट और बोरिंग क्वेश्चंस करने पड़ेंगे जिनमें बहुत मज़ा नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो फ़न एंड गेम्स वाली बातें नहीं होती हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप जो है वो इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग वेदर अ पर्सन फील्स कमिटेड और नॉट। एंड देन देर आर ऑल्सो पीपल जो कि पार्टनर्स जो हैं वो पैथोलॉजिकल चीटर्स भी होते हैं, जो कि एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा चीटिंग हैबिट उनकी नहीं ख़त्म हो सकती, ये पैथोलॉजी होती है एक्चुअली। और अगर आप अपने पार्टनर में ऐसा बिहेवियर पैटर्न देख रहे हैं तो आपको अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अपने पार्टनर को भी मशवरा देना चाहिए, स्टेइंग विद इन योर safe boundaries and aware about your safety, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी, कि ये ट्रीटमेंट सीख उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है अगर एक पैथोलॉजिकल चीटिंग बिहेवियर किसी में देखा जा रहा है तो। और फिर इस तरह के रिलेशनशिप पैटर्न्स इमर्ज होते हैं बिकॉज एक स्टैंडर्ड फेथफुल रिलेशनशिप को हमारी सोसाइटी आजकल जो है बोरिंग कंसिडर करती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी सोसाइटी में बॉयज़ को पीयर ग्रुप में जो है वो इनक्रेज किया जाता है टू हैव मल्टीपल पार्टनर्स, रोमांटिक पार्टनर्स, और कितनी बंदियाँ अभी तेरी तेरी कितनी है, मेरी तो इतनी है, अच्छा वाह तू तो बड़ा वो गुरु हो गया ना हमारा, तो मैं तुमसे तो हमें सीखना चाहिए, टिप्स लेनी चाहिए, तुम चार चार एक साथ चला रहे हो, चलो ये इस्लाम में तो दाखिल हो गया ना, चार एक जगह कर ली। तो being flirtatious is a sign of authority or alpha status, unfortunately। और ये mindset जो है ये emotional detachment cause करता है, emotional complications emerge होती हैं। जो हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो इमोशनली मेच्योर नहीं हो पाते हैं, स्टेबल नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है कि अगर हम एक सर्टेन कूल स्टीरियोटाइप अपीयरेंस, अच्छा अब ये स्टीरियोटाइप भी कीवर्ड मैं बहुत बोलना शुरू हो गई हूँ, राइट। तो अगर हम एक कूल सर्टेन प्रोफाइल फिट इन नहीं करेंगे, मीट नहीं करेंगे, तो वी आर नॉट द हैपनिंग वंस, राइट। तो ये वाला माइंडसेट जो है ना, फिर ये फर्दर फ्यूचर में जो उनका मैरिटल रिलेशनशिप है उसमें सेटिस्फैक्शन, उसकी लॉन्जिविटी, उसकी स्टेबिलिटी, उनका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पैटर्न, ये सब भी इम्पैक्ट करता है। वो अपने पार्टनर की बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, और वो घरेलू जो पॉलिटिक्स हैं उसमें कैसे फंस गए, क्या वो अपने पार्टनर के लिए स्टैंड ले रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब एक शादी हो जाती है तो लड़का और लड़की जो अब एक मैरिड कपल हो गए, वो बच्चे नहीं रहे, चूज़े नहीं है, वो बड़े हो गए हैं, और वो तब से बड़े हो गए जब से उनका हार्मोनल मेकअप चेंज हुआ है। अब उनकी जाके शादी हुई है तो वो छोटे नहीं हैं, उनको डिसीजंस लेने चाहिए अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए। लेकिन इस तरह के जब माइंडसेट से पे बच्चे आते हैं ना, जो कि इमोशनली मेच्योर नहीं हुए होते, इमोशनल इंटेलिजेंस उनकी जो है वो उस पर तवज्जो नहीं दी हुई होती, उनके अंदर इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है, अपने इमोशंस के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, उसको प्रोसेस नहीं करे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर फर्दर उनकी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। और आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल, अक्सर जो है वो आई वुड से कि जो कि काउंसलिंग के लिए आएँ या जो भी है कांटेक्ट करें, तो आई हैव हर्ड फ्रॉम देम कि आफ्टर गेटिंग मैरिड तो एक जो कॉमन कंप्लेन या फीलिंग शेयर कर रहे होते, कहते हैं कि हम तो एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि अजनबी हैं, अब वो स्पार्क नहीं रहा। ये एक बहुत कॉमन जुमला है। 4 साल बाद, 10 साल बाद वो स्पार्क नहीं है, वो गल नहीं रही हुण। तो भाई स्पार्क फुलझड़ी थोड़ी हैं आप, माचिस बम या वो माचिस पटाखा थोड़ी हैं आप। स्पार्क तो फुलझड़ी का भी भाई ख़त्म हो जाता है, पटाखा भी फट फुट के फिर बुझ जाता है, तो हमारा भी स्पार्क जो है वो जलता थोड़ी रहेगा। देखिए स्पार्क ख़त्म होगा तो स्टेबिलिटी आएगी। स्पार्क इज़ द केओस। फुलझड़ी में आप देखें पट 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 इधर उधर फट रही होती है, फिर आखिर में बिल्कुल बंद हो जाती है, आपको नज़र आता है। आई थिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है उसके अंदर, क्या होता है, बड़ा मज़े का। केमिस्ट्री में अगर आपने प्रैक्टिकल्स किए हों तो वो हम लोग उसमें से बचा लेते थे, वो मैग्नीशियम का ही कोई कंपाउंड होता था, वो बड़ा मज़े से फुलझड़ी की तरह ही जलता है। उसका वो टेस्ट करते थे ना, तो वो सॉल्ट डिटेक्शन एनालिसिस समथिंग होता था, राइट। तो फट फुट गए, फिर उसके बाद आपको पता चलता है कि भाई इसमें है क्या। जब स्पार्क
ख़त्म होता है, बुझ जाता है, उसके बाद स्टेबिलिटी का सफ़र शुरू होता है पार्टनर के साथ, राइट? डिस्टेबलाइजेशन आती है, तो फिर स्टेबिलिटी की तरफ आप सड़क बनाना शुरू करते हैं। ये लॉ ऑफ नेचर है। 100% पावर एफिशिएंसी आउटपुट जो है ना, वो आइडियल जनरेटर का भी नहीं होता, वो सिर्फ थ्योरेटिकली आइडियल जनरेटर है, वो थ्योरी में ही है। भाई इतना कुछ होता है एनवायरनमेंट में जो 100% एस्पेक्ट्स होती हैं वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो आइडियल फैंटेसाइज डेफिनेशंस ऑफ लव, फन रिलेशनशिप्स, नॉट बोरिंग रिलेशनशिप्स हैं, फ्लर्टिंग इज़ व्हाट, ये वो सब जो भी मैं डिफ़ाइन नहीं करूँगी भाई, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनको, तो ये जो भी एक फैंटेसी परफेक्ट रिलेशनशिप है या एक फैंटेसाइज्ड प्रोलॉन्ग्ड इनफाइनाइट स्पार्क है, ये नहीं होता। ये ऑब्वियसली बुझ जाता है। और फिर उसके बाद जो है आप सोचते हैं अपने पार्टनर के साथ फर्दर अलॉन्ग, फिर लाइफ में स्ट्रगल्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जो लोग, मैं कहती हूँ, फेलियर्स को फेस नहीं करते, या जो लोग जो है चैलेंजेस को फेस नहीं करते, जिन बच्चों को हर चीज़ उनके रोने से पहले ही मिल जाती है, या जैसे रोते हैं वैसे ही हर वक्त मिल जाती है, कभी कभी करना इज़ ओके, फाइनलिटी में कोई बात नहीं लें, ठीक है? आपको देखना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से, उसकी नज़ाकत को भांपते हुए आपको एक्ट करना पड़ता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो परफेक्ट चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और ट्राइंग टू एम्यूलेट द परफेक्शन और परफेक्ट रियलिटी, परफेक्ट सिचुएशंस, उनको फिर इम्परफेक्शंस जैसे ही आती हैं, वो बिल्कुल उनको एक सेटबैक लगता है एंड दे आर अनएबल टू कोप विद दैट। तो ये जो बोरिंग फेज़ है, जो कि 2-3 ईयर्स के बाद जब आपकी वो रोज़ कलर्ड ग्लासेस उतरती हैं, जब हार्मोन्स जो कि स्ट्रॉन्ग फील गुड हार्मोन्स हैं, उनका लेवल स्टेबलाइज होना शुरू होता है, जस्ट लाइक ड्रग्स जो है वो डोजेज इंक्रीज, फिर एक सर्टन जो है वो आपको फील नहीं होता है, सेंसिटाइजेशन हो जाती है, राइट? उसको हम कहते हैं कि आपको समझें आप इम्यून हो गए एक सर्टेन चीज़ को देख देख के या कर करके, फिर वो जो केमिकल न्यूरोकेमिकल्स का लेवल है स्टेबलाइज जब हो जाता है, तो फिर आपका जो एग्जेक्टिव माइंड है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो ज़रा सोचने समझने, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब जो एग्जेक्टिव फंक्शंस हैं, वो फिर कहता है कि अच्छा चलो अब मैं सेस करूँ, क्या करना है, ये करना है, वो करना है। तब मीनिंगफुल कनेक्शन, डीप कनेक्शन, लॉन्ग टर्म कनेक्शन स्टार्ट होता है। और वो उस पर डिपेंड करता है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट कर रहे हैं ओपनली या नहीं कर रहे, गोल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट हो रहा है गोल में, एक दूसरे की ग्रोथ में स्टेगनेंसी ना आए आप लोगों की वजह से, रीडिस्कवर करते हैं आप इंटीमेसी को ऑन डिफरेंट लेवल्स, और ट्रस्ट होता है, रिस्पेक्ट होती है, आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट का स्टाइल चेंज होता है, एक सर्टेन मेच्योरिटी आती है, और फिर रिलेशनशिप्स जो हैं वो फर्दर ऑन डेवलप, ग्रो, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये कहते ना कि सॉरी करेंगे तो रिलेशनशिप जो है वो शैलो हैं, नहीं करेंगे तो नहीं शैलो हैं, या ऐसे होगा तो अच्छे हैं, वैसे होगा तो बुरे हैं, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी में भी यार क्विक फिक्सेस नहीं होती हैं। पैनाडोल जो है जब आप खाते हैं, तो पैनाडोल के गुड इफ़ेक्ट्स भी हैं, गुड स्टफ़ भी है, और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। जो टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं वो एक सर्टेन यूज़ भी है, और जो उसमें फ्लोराइड है वो एक न्यूरोटॉक्सिन भी है। तो मैं देख रही थी लोग फटाफट शेयर करना शुरू हो गए, ओ माय गॉड ये तो न्यूरोटॉक्सिन्स हैं भाई हैं, लेकिन उसको यूज़ करने का एक सर्टेन वे है, न्यूरोटॉक्सिन का लेवल एक सर्टेन लिमिट में है। आपने टूथपेस्ट को ऐसे करके, अब मैं इस पे नहीं जा रही, देखिए फिर मेरी ट्रेन ऑफ थॉट कहीं और जा रही है, मैं ज़रा से अपने पॉइंट्स को देखना बंद किया ना, तो मेरा, मैं इधर उधर की डिटेल्स में घुस रही हूँ, कहानियाँ सुना रही हूँ। बात पे आते हैं कि जब हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं ना कि परफेक्ट रेसिपी मिल जाए, परफेक्ट रेसिपी कहीं भी नहीं होती है। किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसके थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसी तरह साइकोलॉजी में ही मैं आपको ये नहीं कह सकती कि ये मैजिक पिल है, ये खा लें, और या ये आपने नहीं करना है रिलेशनशिप में तो आपका रिलेशनशिप बिल्कुल एकदम चमकदार, झकास हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। वंस अगेन कमिंग बैक टू द फुलझड़ी एनालॉजी, आप फुलझड़ी नहीं हैं, आप पटाखा नहीं हैं। इवन इफ अगर आप फुलझड़ी भी होते या होती तो बंद हो जाती है वो भी, राइट? तो बस ये आप सोचें, मैं अपनी ट्रेन मेरी छूट गई है और मैं अब सोच रही हूँ कि क्या, ऐसे मेरे साथ लेक्चर्स में भी होता था, तो उसमें भी मैं फिर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से कोई ना कोई जो है ना मुझे बता देता था कि आप ये बोल रही थी। तो अभी खैर ये क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग है तो मुझे खुद ही फिगर आउट करना है मैं क्या बोल रही थी। सो द थिंग इज़ कि आपको अपने रिलेशनशिप्स में खुद ही वो स्टेबिलिटी, वो ग्रोथ,
वो मैच्योरिटी सीख करनी पड़ती है और वो आहिस्ता-आहिस्ता आती है, वो फ़ौरी नहीं आती। वो कोई आपको ये नहीं कह सकेगा कि भई ये चीज़ें कर लो तो कुछ भी ख़राब नहीं होगा, ख़राबियाँ आएँगी और उसको आपने कैसे ओवरकम करना है, दैट विल डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ योर रिलेशनशिप। और मैं ये भी नहीं कह रही कि अगर अब्यूज़िव रिलेशनशिप पैटर्न्स हैं तो अपने आप को आप उसमें जो है वो अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ पर बात करें, अपनी फिजिकल सिक्योरिटी को जेओपाडाइज करें। ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ केयर, always be compassionate to yourself first. That is the first step, to be compassionate to everybody else around you, to care about everybody else around you. You cannot care genuinely for other people, for your loved ones, unless you also care about yourself. Also प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। मैं बहुत इस पर स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आप खुद से बर्नड आउट हैं, आप दूसरों को कुछ भी नहीं दे सकेंगे। आप उनको ताने, कड़वी कसीली बातें, बुरा मूड, यही सब देंगे। लेकिन अगर आपने खुद अपनी सेल्फ केयर रूटीन को इंटैक्ट रखा हुआ है, आप जो है बड़े इन टच हैं विद योर सेल्फ और कंपैशनेट एंड टुवर्ड्स योर सेल्फ, तो सब कुछ अच्छा होता जाएगा होपफुली, राइट। सो आंसर हो गया क्वेश्चन कि मैं भूल गई हूँ। सो हार्ट ब्रेक, अच्छा वो वाला कि वाई, जो सेकंड क्वेश्चन था मिलता जुलता, दी हार्डर वन, कि मूव ऑन कैसे करें बिट्रेयल से। अगर किसी ने बिट्रे किया है तो फिर अब वो मूव ऑन कैसे करें, उनसे मूव ऑन नहीं किया जा रहा, उनका भी ब्रेकअप का ही है सीन, और पर उनके पार्टनर ने उनको चीट किया है। सो हाउ डज़ ही मूव ऑन। तो अच्छा जी, देखें, आपको भी मुश्किल तो इसीलिए आ रही है क्योंकि आपका ब्रेन जो है उसको लग रहा है कि कमिटमेंट ऑब्वियसली उनके साथ अटैचमेंट थी, और फिर कमिटमेंट को हमारा ब्रेन जो है वो सेफ्टी नेट के तौर पे देखता है। तो जब कोई चीट करता है आपसे तो, या आपको बिट्रे करता है, तो आपका वो जो सेफ्टी नेट है वो ब्रेक हो जाता है और आपका जो इमोशनल फाउंडेशन है वो शैटर हो जाता है। तो फिर ट्रस्ट बिल्डअप होने में एक तो वो रिलेशनशिप डिटैचमेंट वाला स्ट्रगल हो रहा है, आपके ब्रेन उससे गो थ्रू कर रहा है, प्लस जो आपकी इमोशनल फाउंडेशन सेफ्टी नेट वो भी ब्रेक हो गया है, उससे भी आपका ब्रेन का वो जो सेफ्टी कंपस है वो डिरेल हो गया है। तो हार्ट ब्रेक जो कि स्पेशली ड्यू टू बिट्रेयल हो, चीटिंग बिहेवियर ऑफ एन इंटीमेट पार्टनर, दैट इज़ वेरी टफ, क्योंकि आपका ब्रेन बिल्कुल स्टक हो जाता है, फिजियोलॉजिकल लेवल पे बहुत सिवियर पेन फील होता है, और योर ब्रेन अगेन एज आई सेड इन अदर जो क्वेश्चंस थे कि आपके ब्रेन को इस वक्त क्रेव हो रहा है वो कनेक्शन री इस्टेब्लिश करने का, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन और डोपामीन, जो मैंने पहले आपको बताया। तो और इस सब को मज़ीद कॉम्प्लिकेट आपका जो वो सेफ्टी नेट भी नहीं है, द कमिटमेंट कंपस, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। आपको वो दुख भी है कि चीट किया और चीट हो रहा था तो आप पकड़ नहीं पाए, और या आपको अंदाज़ा नहीं हुआ उस चीज़ का, और अब हो गया है और नाउ यू आर इन द ब्रेकअप। सो आपको मुश्किल हो रही है कि आप कैसे मूव ऑन करें। सो हो जाता है, डिफ़िकल्ट भी है, और एज साइकोलॉजिस्ट आई वुड से कि इनवैलिड नहीं है आपकी फीलिंग्स, आई एम्पैथाइज विद यू। और इसमें मगर लोग ये कहें कि ये तो बस ट्रॉमा अट्रैक्शन अटेंशन सीकिंग टैक्टिक होता है, तो ये गलत होता है। एज आई सेड कि साइको न्यूरोलॉजी स्टडी करनी चाहिए। अगर हम ये कहेंगे कि ये चीज़ें फ़जूल की बातें हैं, बस ऐसी कहने की बातें हैं कि मुझे इतना ट्रबल हो रहा है और क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहा, मर्द बनना चाहिए और हिम्मत करो, आई थिंक ये लड़के ही थे, मुझे अगर सही से याद हो तो। मेरे पास जो स्लाइड्स हैं उसमें इनका पूरा सवाल नहीं है, तो लेकिन मुझे याद आ रहा है मैंने जो फुल इनका क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे इनके जेंडर का अंदाज़ा उनके वो से ही हुआ था, प्रोनाउंस से। तो अच्छा, तो खैर हमारे माशरे में ये अक्सर कहा जाता है कि भई ये क्या तुम लड़कियों वाली बातें कर रहे हो कि तुम्हें हार्ट ब्रेक और चीटिंग और ये और वो, परा करो उसको और तुम्हें 600 मिल जाएंगी। तो जी, इस सब का ताल्लुक एक तो उनके जो लोग हैं जो इससे गुजर रहे होते हैं, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उनकी अटैचमेंट कितनी थी उस इंसान के साथ जिसके साथ अब नहीं रही, और दूसरा जो है बिट्रेयल और इमोशनल डिटैचमेंट, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग जो है फैक्टर्स हैं आपकी न्यूरोलॉजी के साथ खेलने वाली बात होती है। तो अगर हम इसको एडमिट नहीं करते ना, एक्नॉलेज नहीं करते कि हाँ जी ये वैलिड है, तो हम एक्चुअली अपने ब्रेन केमिस्ट्री को इंसल्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल और इतना इम्पैक्टफुल है हमारा न्यूरो केमिस्ट्री कि मुझे बहुत अफसोस होता है जब लोग कहते हैं कि भाई साइकोलॉजी ये कर रहे हो। इस पे
टाइम ज़ाया कर रहे हो, इसकी बातें कर रहे हो, हार्ट ब्रेक हो रहा है तो मसला हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है तो मसला हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है तो मसला हो रहा है, ये केड़े मसले ने? तो ये मसले हैं भई, इन मसलों को आप एड्रेस करेंगे, खुश रहेंगे, इम्यून सिस्टम बेहतर रहेगा, बीपी कम रहेगा, आपके ऑर्गन्स अच्छे फंक्शन करेंगे, आपका ब्रेन बहुत इम्पैक्ट करता है। आपका ब्रेन ऐसी-ऐसी केमिकल्स आपकी बॉडी में बना रहा है जिसकी वजह से आपकी जो फिज़ियोलॉजी है वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वो वीक भी हो सकती है, तो इसको इग्नोर नहीं करें। तो ये बिल्कुल एक वैलिड फीलिंग है। छोटी और पॉइंट की बात ये है कि प्रॉब्लम तो है, आप प्रॉब्लम में हैं, इट डज़ फ़ील लाइक बीइंग स्टक इन जैसे आप उसमें फँस गए हैं। वो क्या होता है वो 10 मैं थोड़ी-सी ना डिरेल हो रही हूँ बिकॉज़ मैं कितने बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ? 2:30 बजे रात के। तो ऐसा लगता है कि आप दलदल में फँसते जा रहे हैं, तो जितना आप निकलने के लिए हाथ-पैर मार रहे हैं और सफोकेशन हो रही है। लेकिन इस सिचुएशन में बार-बार अपने माइंड को ये याद करवाएँ, ये रिमाइंड करें वर्बली कि इट्स जस्ट अ फ़ेज़ और आप जो है इसे कोप कर सकते हैं। देयर आर हेल्दी वेज़ टू कोप आउट ऑफ इट। तो कैसे आप कोप करें? हाउ डू यू मूव ऑन? फर्स्टली आपने ये याद रखना है कि बिट्रेयल डज़न्ट डिफाइन योर वर्थ। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि ये जो हार्ट ब्रेक और बिट्रेयल वाला मिक्सअप है, इसमें ऑब्वियसली आप बहुत स्टक फ़ील करते हैं बिकॉज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूरोकेमिस्ट्री जो हो रही है, आपको फिज़ियोलॉजिकल लेवल पे वो हार्ट ब्रेक फ़ील हो रहा है और आपका माइंड अगेन विथड्रॉल सिम्पटम से गुज़र रहा है, उसका कमिटमेंट कंपास जो है वो मेस अप हो गया है, सेफ्टी नेट आपका ब्रेक हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बहुत इंटेंसिफ़ाइड और ओवरवेलमिंग आपके लिए हो गई हैं। इसको फ़ील करना, इसमें से गुज़रना कोई ख़राबी वाली बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, ये एक्चुअली हो रही हैं आपके साथ चीज़ें, इनवैलिड नहीं है। और अब जब आपने इनको एक्नॉलेज कर लिया है, तो अब आप ये सोचें कि इनसे कोप करना भी पॉसिबल है और आपके पार्टनर का आपको चीट करना, बिट्रे करना डज़न्ट डिफाइन योर वर्थ। इट इज़ नॉट अबाउट यू, इट इज़ अबाउट देम। तो शिफ्ट द फोकस टू योरसेल्फ। आपको क्या चाहिए टू हील from that experience, right? So again, I'm gonna go back to my favorite uh, Panadol, psychological Panadol here, boundaries. आप अपनी बाउंड्री स्टैब्लिश करना शुरू करें। थिंक कि व्हाट आर योर साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल, स्पेशल बाउंड्रीज़ और उनके बारे में स्टार्ट बीइंग मोर अवेयर ऑफ देम। स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर लाइफ गोल्स। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल जो आपको अच्छा फ़ील कराते हैं। आपका क्लोज़र सोशल सर्कल आपकी फैमिली हो सकती है, आपके क्लोज़र फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है। सो स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद दीज पीपल, स्टार्ट क्रिएटिंग न्यू रूटीन्स, जिन रूटीन्स में आपका वो जो पार्टनर था या थी वो पार्ट नहीं थे और नाउ यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू, सम न्यू चैप्टर्स इन योर लाइफ। तो स्टार्ट ब्रिंगिंग इन न्यू थिंग्स टू योर लाइफ। अक्सर आपने देखा होगा कि लड़कियां स्पेशली एक दूसरे को ज़रूर एडवाइस देती हैं आफ्टर अ ब्रेकअप, दे गो फॉर अ हेयर कट और तुम अपना हेयर स्टाइल चेंज करा लो या गो हैव अ लवली स्पा डे। तो bringing something new or a change in your routine or habits or hobbies can make a difference and help in shifting your perspective a little bit, क्योंकि एक छोटा सा पुश चाहिए होता है for your brain to move in another direction। हमारे ब्रेन में एक्चुअली पाथवेज बने हुए होते हैं जिनकी वजह से हमें चीज़ें याद रहती हैं, हमारी एसोसिएशन होती है चीज़ों से, हम डिप्रेस फील करते हैं, एंक्शस फील करते हैं। कुछ पाथवेज जिनसे आप बार बार गुजरते रहते हैं वो पक्के हो जाते हैं, पक्की सड़कें बन जाती हैं। अगर उनको आपने दोबारा जंगल में तब्दील करना है, उनसे ताल्लुक़ ख़त्म करना है, उन पाथवेज़ को मिटाना है, उन सड़कों को डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि वो हार्मफुल हैं, हार्मफुल या पैथोलॉजिकल लूप्स हैं, तो उन पे से गुज़रना कम करना पड़ेगा। थोड़ा अरसा स्टार्ट में कॉन्शियसली करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो ब्लर होती जाती हैं। वो पाथवेज़, वो न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं, वो डिसअपीयर होने लगते हैं और आपके न्यू नेटवर्क्स जो कि हेल्दी हैं, जो कि अच्छी सड़कें हैं, पक्की, अच्छी, प्यारी सड़कें हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं और इसके आपको अच्छे-अच्छे बेनिफिट्स नज़र आने लगते हैं। तो ये आप के लिए कुछ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप यूज़ करके इस लूप से निकलने की ट्राई कर सकते हैं। और if you are in a relationship where patterns of betrayal continue, it's really important to acknowledge this behavior of your partner कि वो बार-बार betray कर रहा है, cheat कर रहा है, कर रही है और ये उसका एक पैथोलॉजिकल पैटर्न है बिहेवियर में। तो यू हैव टू रियली डिसाइड कि कैन यू रियली सेव दैट रिलेशनशिप। आपके तो क्वेश्चन से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आपका रिलेशनशिप इज़ नॉट इंटैक्ट एनी लॉन्गर, which is good for you, right? Because if that person actually did something
not caring about your feelings and now they have moved on, you shouldn't be the one waiting for them. For some, this अच्छा कुछ partners will find a way to reconnect as well, which is also fine. If that thing, again, the tendency to cheat is not a pathological behavior that happens again and again, again and again. If it's a pattern, if it's happening again and again, recurrent hai, to phir there is trouble, right? And you have to decide that you have to draw a line at some point, and whether your relationship is that type of relationship is salvageable or not at all, right? Whether you can save it or not, or whether you should try to save it or not. So for I think that is all from me for today. So at the end of the day, I think healing is a process that takes time, लेकिन every step counts. और अगर आपको लग रहा हो कि आपको अपना उस peaceful road पे बार बार गुजरने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो as I say, psychological help seek करना बुरी बात नहीं है. और there's so many mental health professionals these days, और अब जो stigma है around mental health वो भी कदरे कम हो रहा है, या अगर है तो acceptability भी है. लोग समझते हैं कि mental health important है, किसी भी level पे समझें, लेकिन समझते हैं, इसकी ज़रूरत को समझने लगे हैं. और ये याद रखिए कि psychological health सिर्फ दिमागी, कलामी, ज़ुबानी बातें नहीं है. साइकोलॉजी का आपकी फिजियोलॉजी से, बायोलॉजी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, बहुत इम्पैक्ट करती है. हम लोग जितने साइकोलॉजिकल बीइंग्स हैं या जितने फिजियोलॉजिकल बीइंग्स हैं, उतने ही साइकोलॉजिकल बीइंग्स भी हैं, राइट? सो ये दोनों चीज़ें बहुत इंटरैक्ट करती हैं. तो अपनी नफ्सियाती सेहत का है यही होगा, ख़याल रखें, अपना ख़याल रखें. और आज के जो क्वेश्चंस थे उनकी थीम्स जो थी, फ्लर्टिंग, चीटिंग, हार्ट ब्रेक और हीलिंग, at the end of the day, it all comes down to boundaries, respecting yourself, your partner, communicating with your partner, and establishing some groundwork for your relationships and bringing things in perspective. Why you were in that relationship, what are your goals, where you guys see yourself, etc. Take care of yourself, have some tea. I will, but I'll have to warm it up. And I hope you had some good things to take away from this episode of a long YouTube premiere. I did try my best to answer as quickly, as briefly, and as comprehensively as possible. But again, counseling cannot happen in 15-20 minutes. If you feel that you are not able right now, you are having a hard time to cope yourself, please seek professional help. There is no shame in it. Take care of yourself, and Thank you for listening to the Decaf Psychologist podcast. To stay connected, subscribe to our podcast now and visit www.decafpsychologist.com. Catch you on the next brew.